ಇನ್ನು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಹಿಂದೂ ನರಮೇಧಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಳಿಕ ಈಗ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಷರತ್ತು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗೆ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯ ಬಗೆಹರಿಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಹಜಾದ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ತಿರುಗೇಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. Differences in value systems and assessments of the nature of India's nationhood and its civilizational inheritance between people like Gandhi, I would say, and Pandit Nehru and Praveen Davar's father and Jinnah and many other Muslims who did not agree with Mr. Jinnah. But the fact is that partition happened, and till today we are living with the consequences of that partition. Is this how we should be living? Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam? और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए और पाकिस्तान के पहलगाम आतंकी हमले को जस्टिफाई करने के लिए एक नया एक्सक्यूज दिया है, एक नया बहाना दिया है. रॉबर्ट वाड्रा ने बोला हिंदुत्ववादियों ने किया, हिंदुत्व फोर्सेस ने किया, मुस्लिम्स इनसिक्योर है इसलिए पहलगाम हुआ. उसके बाद इरफान अंसारी ने कहा हिंदू मुस्लिम मोदी करते हैं. उसके बाद कांग्रेस के केरला के यूनिट ने बोला ये गनमैन थे, ये आतंकी नहीं थे. और अब सबसे करीबी गांधी परिवार के मणिशंकर अय्यर, अंकल मणि, जो अंकल सैम पित्रोदा की तरह बहुत करीबी है, वो कहते हैं कि ये पार्टीशन की वजह से हो रहा है. पार्टीशन के अनसॉल्व्ड और अनरिजॉल्व्ड जो क्वेश्चंस है उसकी वजह से ये पहलगाम का हमला हुआ. पार्टीशन के दौरान तो वैसे नेहरू जी और जिन्ना थे, तो नेहरू जी को दोष दे रहे हैं. और सवाल यह है कि कब तक पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाएगा हर आतंकी हमले पर, व्हाइट वॉशिंग की जाएगी इस्लामिक जिहाद की. अब आतंकी नहीं बोल सकते, आप गनमैन बोलते हैं. कर्नाटका के सीएम बोलते हैं कि कार्रवाई स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, आतंक के खिलाफ युद्ध नहीं होना चाहिए. कोई बोलता है कि ये हिंदुत्ववादी लोग कर रहे हैं, कोई और आकर जस्टिफाई करता है. 26/11 को आप ಇನ್ನು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಹಿಂದೂ ನರಮೇಧಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಳಿಕ ಈಗ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಷರತ್ತು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗೆ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯ ಬಗೆಹರಿಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಹಜಾದ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ತಿರುಗೇಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. Differences in value systems and assessments of the nature of India's nationhood and its civilizational inheritance between people like Gandhi, I would say, and Pandit Nehru and Praveen Davar's father and Jinnah and many other Muslims who did not agree with Mr. Jinnah. But the fact is
that partition happened, and till today we are living with the consequences of that partition. Is this how we should be living? Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam? और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए और पाकिस्तान के पहलगाम आतंकी हमले को जस्टिफाई करने के लिए एक नया एक्सक्यूज दिया है, एक नया बहाना दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने बोला हिंदुत्ववादियों ने किया, हिंदुत्व फोर्सेस ने किया, मुस्लिम्स इनसिक्योर है इसलिए पहलगाम हुआ। उसके बाद इरफान अंसारी ने कहा हिंदू मुस्लिम मोदी करते हैं। उसके बाद कांग्रेस के केरला के यूनिट ने बोला ये गनमैन थे, ये आतंकी नहीं थे। और अब सबसे करीबी गांधी परिवार के मणिशंकर अय्यर, अंकल मणि, जो अंकल सैम पित्रोदा की तरह बहुत करीबी है, वो कहते हैं कि ये पार्टीशन की वजह से हो रहा है। पार्टीशन के अनसॉल्व्ड और अनरिजॉल्व्ड जो क्वेश्चंस है उसकी वजह से ये पहलगाम का हमला हुआ। पार्टीशन के दौरान तो वैसे नेहरू जी और जिन्ना थे, तो नेहरू जी को दोष दे रहे हैं। और सवाल यह है कि कब तक पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाएगा हर आतंकी हमले पर, व्हाइट वॉशिंग की जाएगी इस्लामिक जिहाद की। अब आतंकी नहीं बोल सकते, आप गनमैन बोलते हैं। कर्नाटका के सीएम बोलते हैं कि कार्रवाई स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, आतंक के खिलाफ युद्ध नहीं होना चाहिए। कोई बोलता है कि ये हिंदुत्ववादी लोग कर रहे हैं, कोई और आकर जस्टिफाई करता है। 26/11 को आप ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಹಿಂದೂ ನರಮೇಧಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಳಿಕ ಈಗ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಷರತ್ತು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗೆ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯ ಬಗೆಹರಿಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಹಜಾದ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ತಿರುಗೇಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. Differences in value systems and assessments of the nature of India's nationhood and its civilizational inheritance between people like Gandhi, I would say, and Pandit Nehru and Praveen Davar's father and Jinnah and many other Muslims who did not agree with Mr. Jinnah. But the fact is that partition happened, and till today we are living with the consequences of that partition. Is this how we should be living? Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam? और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए और पाकिस्तान के पहलगाम आतंकी हमले को जस्टिफाई करने के लिए एक नया एक्सक्यूज दिया है, एक नया बहाना दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने बोला हिंदुत्ववादियों ने किया, हिंदुत्व फोर्सेस ने किया, मुस्लिम्स इनसिक्योर है इसलिए पहलगाम हुआ। उसके बाद इरफान अंसारी ने कहा हिंदू मुस्लिम मोदी करते हैं। उसके बाद कांग्रेस के केरला के यूनिट ने बोला ये गनमैन थे, ये आतंकी नहीं थे। और अब सबसे करीबी गांधी परिवार के मणिशंकर अय्यर, अंकल मणि, जो अंकल सैम पित्रोदा की तरह बहुत करीबी है, वो कहते हैं कि ये पार्टीशन की वजह से हो रहा है। पार्टीशन के अनसॉल्व्ड और अनरिजॉल्व्ड जो क्वेश्चंस है उसकी वजह से ये पहलगाम का हमला हुआ। पार्टीशन के दौरान तो वैसे नेहरू जी और जिन्ना थे, तो नेहरू जी को दोष दे रहे हैं। और सवाल यह है कि कब तक पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाएगा हर आतंकी हमले पर, व्हाइट वॉशिंग की जाएगी इस्लामिक जिहाद की। अब आतंकी नहीं बोल सकते, आप गनमैन बोलते हैं। कर्नाटका के सीएम बोलते हैं कि कार्रवाई स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, आतंक के खिलाफ युद्ध नहीं होना चाहिए। कोई बोलता है कि ये हिंदुत्ववादी लोग कर रहे हैं,
कोई और आकर जस्टिफाई करता है। 26/11 को आप